All right, so today we were supposed to discuss the topic design via root locus. So we have seen how powerful is the root locus, as a technique generally for higher order systems where we do not have where it becomes very difficult to do those things analytically. But root locus really gives us, a kind of is a powerful technique that enables us to identify the movement of the closed loop poles as the gain is varied. All right. It is more of a graphical representation that we have seen, and we can more of kind of sketch it very properly by finding out the break-in, breakaway points. We can find out the angles of arrival, angles of departure. We can find out, the complete root locus. We can actually draw probably with hand also, and maybe we may need sometimes the computer and other tools. But as far as root locus is concerned, we have seen some constraints, like it is obviously what we have discussed for single input, single output systems that we generally see, and then the system is fixed, and then third thing is the gain is k. So the controller is very simple, where we call सर as वॉइस a कैसे आ simple. रही? Hmm? सर वॉइस ब्रेक हो रही है. जियो फाइबर पे ही हूँ. मेरा ये हेडफोन भी लगा हुआ है. सर मुझे आ रही है, आई थिंक उसको नेटवर्क इशू ठीक होगा. है सर, ठीक आ रही हो है. सकता है आपके एंड पे. हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं. So, so we have seen that root locus is certainly much helpful, but the things that we have kind of fixed there were that it is a single input, single output system. That is what we will do it for the whole in this semester. We'll not go for multi input output systems. But second thing is, what we had seen is the plant is also fixed. So whatever plant is given to us, we do not change it. Third thing was that we had the controller in the form of gain, capital K, which generally we call as gain, but that is what the controller for us was, at least till now, where we saw that whatever error was coming in, and then we would generally multiply it with K, and that error was fed to the plant. So that we generally in controller, these let's say the circles called as proportional controller. So we have seen that, let's say this is our controller and this is our plant. This is the output. And for a feedback system, let's say unity feedback system, we have seen that this is replaced by K, and this is, let's say, plant, which is suppose G of S. All right. So we had seen that by changing capital K, we could change the roots of this closed loop transfer function. So we had open loop transfer function as G of S, sorry, which was S plus Z1, S plus Z2, and so on, divided by S plus P1, S plus P2, so on. Okay. So we have seen that by adding gain K, the forward path transfer function, we had something called as closed loop transfer function, which was something like G of S by 1 plus G of S H of S, but because K is multiplied to it in the forward path, so by cascade this cascading of 2, we have seen that it gets multiplied. So it's like 1 plus K G of S, since H of S is 1. So it will be simply like this. And because of this, we have seen that the denominator or the characteristic equation is modified by this K. So as we change K, the roots will also change. So if roots change, which means it impacts this stability and generally called as transient response, and third one is steady state error. So these three things are important. We have seen if we change the roots, we can change all the three. The system can turn from stable to unstable or unstable to stable by changing K, and we can see the system can respond faster, the system can go slow. We have seen the error can go to 0, error can be finite. All this can actually happen with just K. So we can change various things with just changing K. The simple controller K
is sometimes useful. So here what happens is we have a signal which gets multiplied to k, which is E of S that we have already defined. This is nothing but Rs minus the C of S. C of S is the output. So E of S is nothing but input, desired input minus the actual output at that state. Okay? And this E of S is actually multiplied by K here, which gets as an input to the plant. Okay? So now this error, K into error, this is now proportional. We say this is K is something like constant. So this is proportional to the error. Input to plant is proportional to the error. That's why we call it as proportional controller. Okay? This is known as proportional controller because we are feeding proportional to error something, so multiplied, scaling it, like K is some gain, we're scaling it by something. So K means, like, let's say K is any finite value. Let's say in this case we are again in positive value. So we are proportional to the error. We are not changing the nature of the error. So sometimes we can have the derivative of errors. We can have the integral of the errors. Here we see integral, derivative, and proportional integral derivative controllers and all those things. But to start with, we generally have seen till now that we used a gain K, and that gain is actually nothing but it's an error getting multiplied to that gain, and then that is being fed to the plant. So that's why we call it as proportional to the error, which is nothing but proportional controller. Till now we have seen we did not name it this way, but it was nothing but the proportional controller because we are multiplying the error with some constant. So nature of the error was not changed. Now we have seen that this is so useful to us that it really changes our roots, and that accordingly changes our response, that changes our stability, that changes our steady state error. So we can modify this K in order to select the response as per our requirements. Okay. So what it means is that suppose we have a system which is given to us, let's say G of S, let's assume some value, let's say S square plus 1 by S cube plus 3S square plus 2. I'm taking some arbitrary plant which depicts some dynamics associated with the plant, has some let's say natural frequency, which is some damping ratio and other things. So I have some plant which is fixed in terms of some electromechanical, or it could be like some electric system, it could be mechanical system, electromechanical system, or any other biological systems. Now with this as the plant, if I want to design this plant, a controller for this plant, okay, so I usually put a K, let's say, and then I put this transfer function here. That's what forward path transfer function means. I generally am now convinced that feedback loops make system stable. So I have feedback loop. This is the input. This is the output. This is my controller. Now I can call it controller, or we simply call it gain. Okay, and this is the plant. Now with this, I can, if I ask you, let's say, if I want some percentage overshoot, that my plant, after controlling it, should not actually go beyond the limit. So it should go like this, let's say. So for example, a lift should not go beyond this. If it has to go to a particular floor, let's say first floor, from 0, it should not go beyond this much value, which is, let's say, some meters or some centimeters. So this we define as percentage overshoot. And then I say that it should have some settling time. Okay, it should have some particular rise time. All right, and it should obviously, all these define the features of this plant. Now for this percentage overshoot, I know that percentage overshoot is actually related to the zeta. Sorry, isn't it? Which is my damping ratio. And I know that the system has to be stable. For stable, my root should be on the left half plane. So these will be my design criteria. Okay. Now for this thing, I'll take this. I'll ask you what is the gain. Now to find out the gain for this type of situation, this is what we have done. We find out we plot its root locus.
So we plot this root locus, we see the open loop poles here. Let's say they are something like 1, 2, 3 poles because it's a third order system. It has, let's say, 2 zeros also. Let's say somewhere here maybe a 0. Let me just guess something like it may be somewhere here also. For this it is plus minus j and other things. Let's assume, suppose for a system, zeros may be somewhere here and maybe somewhere around here. And then we have seen that these were open loop poles and these were zeros. And we have seen as we change k, because k was 0 for open loop poles, as we change or increase k, you see that we can plot root locus. So to the left of odd numbers, so root locus will be first here, second could be 3 here, and third could be simply here. All right. So just to give you a good kind of an example than this, I can assume something else. This may not give a clear picture of what actually it will lead to. Suppose I have a pole, suppose here 1, 2, and maybe a third pole is here. Let's say our zeros are somewhere maybe here, and here it's a complex conjugate, for example. Or in this case, maybe it's on the j omega axis. Okay, so I know that root locus will start from the left of the odd of these. So root locus is between the 2, and then after that root locus is somewhere here. So we have 2 zeros, finite zeros. One infinite zero will be on the left side. So root locus will go like this to the infinite zero. The other root locus will start from here and here, like this. This will break away from here, and maybe it will go to zeros. ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी तक हमने यही डिस्कस किया है। यस सर। तो अब जैसे ये सिस्टम हमारे पास है जो अभी हमने डिफाइन किया, हमने देखा कि हमें इसकी फलां कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, ओवरशूट इतना होना चाहिए, सेटलिंग टाइम इतना होना चाहिए, राइज टाइम इतना होना चाहिए, और ये स्टेबल भी होना चाहिए। तो क्या गेन होना चाहिए उसके लिए? तो हमने क्या किया, हमने देखा इसका हम रूट लोकस प्लॉट कर सकते हैं शुरू में ही, फिर गेन जितना बढ़ेगा उस हिसाब से रूट लोकस मूव करेगा। तो हम भी पहले ये बोल सकते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसमें कि चलिए जी ये सिस्टम कभी अनस्टेबल नहीं होगा, ठीक है। सो k can be anything greater than 0, let's say. Now I am concerned actually now with percentage overshoot, for which I know that it is directly related to the damping ratio. So let's say this is given to me, percentage overshoot is given to me, say 10%, 20%, जो भी है, जो मेरे को डिजायर्ड है ओवरशूट होना चाहिए, तो उस हिसाब से जो है मैं यहाँ पर, हमने देखा कि क्या कर सकते हैं, एक लाइन प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। So ये मेरा zeta is equal to, let's say something, I call it, let's say 0.7 or something like that. Is it clear? Yes, sir. Now in this case, if I for this system, if I desire that it should have this percentage overshoot, but if you see from the figure, this root locus never touches this line, is it? यानी अगर गेन मैं यहाँ से 0 से शुरू करता हूँ, यहाँ पे गेन मुझे पता है इनफाइनाइट होता है, तो गेन 0 से इनफाइनाइट करके भी ये कभी इस परसेंटेज ओवरशूट पे जाएगा नहीं। और ये क्या इंस्टेड होगा, इंस्टेड ये एक और लाइन ऑफ कांस्टेंट जीटा है ये होगी, एक और लाइन ऑफ कांस्टेंट जीटा है ये होगी। सपोज ये जीटा इज इक्वल टू 0.5 है, ये जीटा इज इक्वल टू 0.9 है सपोज, जीटा इज इक्वल टू 0.5 पे तो ये आ रहा है कि ये पॉइंट है एक जहाँ पे मीट कर रहा है, और ये पॉइंट हम बोल सकते हैं ये गेन है, ये वाला पॉइंट पे जो के होगा वो के हमें परसेंटेज ओवरशूट उतना दे देगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारा डिजायर्ड परसेंटेज ओवरशूट है ये वाला, ठीक है, यानी कम से कम सपोज ज्यादा होगा या कम होगा वगैरह, इस तरह हम चाहते हैं नहीं, परसेंटेज ओवरशूट ये होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता है कि इफ वी इंक्रीज गेन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आल्सो, दिस विल नेवर गो टू दैट परसेंटेज ओवरशूट, ऐसे सिस्टम भी होते हैं। तो अब बताइए आप इस केस में क्या किया जाए। अब रूट लोकस भी हमने प्लॉट किया, थर्ड ऑर्डर सिस्टम भी था, और हमने ये सारी टेक्निक्स भी अभी तक जो सीखी वो भी कर ली, लेकिन अब ये जो हो रहा है मसला, इसमें क्या होगा, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस? रूट लोकस चेंज करना होगा, मतलब पोल्स हम और बताइए। ज्यादा कम कर सकते हैं,
ज्यादा। और लोग बताइए, ट्राई कीजिए, खुद से सोचिए, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम टू थिंक. Suppose I want the root locus, sorry, I want that I should have this performance. Anything on this, because anything on this means zeta is 0.7. Zeta is as per desired. So any point on this will be suitable for me. But what I am looking at is that the root locus actually does not ever touch this line. सर हमें पोल उस टाइम टुवर्ड्स द ओरिजिन रखना होगा ना, जो आई थिंक फिर उसको टच करेगा वो. मतलब हाँ, मतलब आप कह रहे हैं ये हाँ, पोल थोड़ा है. क्लोज टू द ओरिजिन होना चाहिए. सर हाँ, अगर हम तो मतलब यू वांट दी, चलिए पहले मैं लिखता हूँ चेंज इन पोल लोकेशन. और सर बताइए अगर हम सकते गेन हैं। चेंज करेंगे उससे हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी चेंज. क्या चेंज करेंगे? गेन. अच्छा गेन हमें निकालना गेन चेंज करने से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो चेंज होती है. है, हमें वही निकालना. गेन चेंज करने से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चेंज हो रही है, लेकिन उससे रूट लोकस हमने बना लिया ना 0 to infinity के लिए. आप गेन कितना भी चेंज करेंगे तो कभी सर वहां जाएगा ही ऑर्डर नहीं. कर सकते हैं फंक्शन का चेंज, ऑर्डर ऑर्डर चेंज कर या सकते हैं. पोल्स। हाँ, पोल्स यहाँ लिखा है ना, ऑर्डर पोल सेम. हाँ, और बताइए. ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी हमें यही लग रहा है कि अगर हम रूट लोकस को ही चेंज करें, यानी पोल्स की लोकेशन को ही चेंज करें, ताकि रूट लोकस ही ऐसा हो जाए, शिफ्ट हो जाए रूट लोकस. जैसे ये नया लोकेशन है पोल का, रूट लोकस ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, रूट लोकस ही यहाँ से मूव करें. पहली पॉसिबिलिटी सर मुझे ये जीरोस लग भी रहा है. चेंज कर सकते हैं ठीक है. टुवर्ड्स दिस लाइन, जीटा लाइन हम ला सकते हैं सर. पोल जीरोस कोई भी चीज हम चेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि वो यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है. ठीक है, राइट. लेकिन व्हाट इट एक्चुअली मीन्स in general is that the plant that was given to you, let's say s square plus 3 plus 1 by s square plus 3s plus 2, it would actually mean, because we have seen changing k, we change actually the closed loop poles, will never actually touch this line. If we are able to change open loop poles, then they may shift, and accordingly the closed loop root locus may actually go through this line. So ideally we are saying चेंज इन पोल लोकेशन एंड जीरोस तो हो रहा है तब भी बिकॉज ऑफ चेंजिंग गेन, है ना. के से तो चेंज होने से लोकेशन चेंज हो ही रही है हमारी, लेकिन मसला ये हो रहा है कि के कितना भी चेंज करेंगे वहां से टच नहीं कर रहा है. इसका मतलब हमें अगर चेंज करना है तो हमें ओपन लूप, है ना, या फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस जो है उसको पोल्स को चेंज करना है जीरो से चुन के. क्लियर? सर वो हम लेकिन गेन से ही चेंज आइडियली कर देते हैं ना. गेन से चेंज करते हैं हम क्लोज लूप पोल्स. के चेंजेस क्लोज लूप पोल्स, बिकॉज हमें आता था ना टी ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस बाय 1 प्लस के जी ऑफ एस છે ને ઈવાન वही શું કસાન એમે ક્લોઝ લૂપ પોલ ચેન્જ गेन સહિત तिम मूव करा, तिम रूट लोकस को तय रूट लोकल डेफिनेशन मूवमेंट ऑफ क्लोज लूप पोल्स. लेकिन what is happening is that even after changing closed loop poles, the root locus does not move to that line, so we are not able to get that performance which is desired. So one good possibility is that we can change the location of open loop poles. All right, so which may change these points to this end, and root locus may again start from somewhere shifted region and then somehow touch this and then move to the zeros. But changing open loop poles means g of s जो हमारा था s square plus 1 by s square plus 3s plus 2, suppose ये हमारा example दिया. Changing open loop poles means changing this structure. सर वो होना चेंज सिस्टम ही चेंज करना है. So it means changing system, which is possible sometimes, ठीक है, but is highly undesirable. ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हम सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, सिस्टम को हमारे ट्रांजिएंट फिनोमिनन या ट्रांजिएंट बिहेवियर के लिए चेंज कर रहे हैं. लेकिन असल में होता क्या है, असल में सिस्टम को जब हम डिफाइन करते हैं या डिजाइन करते हैं किसी भी सिस्टम को, पहले वो रिक्वायरमेंट्स हमारी जो होती हैं, किसी भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में पावर रिक्वायरमेंट्स है या स्पीड रिक्वायरमेंट्स है ना, किसी भी सिस्टम में कोई डिजाइन करना, रोबोट या कोई हमें फैन डिजाइन करना या कोई भी एप्लीकेशन जो हम देखते हैं, मशीन, सीएनसी मशीन या जितनी भी हमारे पास सारी मैकेट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, जितने भी हमारे पास स्पेस में सिस्टम्स है या जितने भी हमारे डायनेमिक सिस्टम्स हैं,
उनके अंदर जो सिस्टम को डिजाइन किया जाता है शुरू में, वो बेस्ड ऑन हमारे जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, पावर रिक्वायरमेंट्स, फला रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसके हिसाब से, या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। हम इस वक्त जो पढ़ रहे हैं कंट्रोलर पढ़ रहे हैं, हमारा पर्पस होता है कि कंट्रोल करना, उसके परफॉर्मेंस में इंप्रूव करना, ना कि सिस्टम को ही चेंज करना जनरली, ठीक है। सो दिस कैन बी डन बट दिस इज हाईली अनडिजायरेबल। ऑलराइट, so what we basically do, rather than changing the system, the other easy way is actually to change the controller. That is what actually we intend to study today. So that's what I have just listed, the similar kind of the, I would say, example that is given in the book also. So you have an example of a system whose root locus is given this way, that use these black marks. If you are able to see this, distinguish these poles. These are black, let's say, poles defining the open loop poles, and 1, 2, and let's say 3. And we know the root locus would be after the odd number 1, and then after third go like this. It has no zeros, for example, so all 3 are infinity. So one will go from here to infinity, another will go from here to infinity, another will go from here to infinity. So now this is the line of constant zeta, which is the constant damping ratio, which means it has a particular overshoot, it has a particular, let's say, transient behavior. So my point of interest, for example, is point number B. So if I want performance of this nature, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये तो zeta सेम ही है, ठीक है, because this is zeta constant, ठीक है। उस केस में हमारा zeta उस zeta की लाइन पे जा ही नहीं रहा था, लेकिन इस केस में हमारा ये zeta को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो zeta को क्रॉस कर रहा है, तो ये तो चाहे कौन सा भी आप zeta बनाएंगे, इसमें तो कोई ना कहीं पे एक क्रॉस करेगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप में से कोई बता सकता है मुझे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट हमारी हो सकती है? रिस्पांस, अगर हम रिस्पांस में कौन सा पैरामीटर? रिस्पांस या कुछ करना होगा, अगर ज्यादा हम चाहते हैं। देखिए हाँ, तो जीटा इज वन ऑफ द पैरामीटर। एक ही पॉइंट पे ठीक है, करता है ना, मतलब इसको टच। जीटा इज ओनली वन। जी, जीटा हमारा ट्रांजिएंट रिस्पांस में एक पैरामीटर, लेकिन बाकी पैरामीटर भी हमारे पास है ना, राइज टाइम है, सेटलिंग टाइम है ना, जिसको हमने देखा था, लाइंस ऑफ कांस्टेंट है ना, ये थी ना हमारे पास। क्या थे हॉरिजॉन्टल लाइंस? क्या थी? राइज टाइम, Settling time. what We had something like this. We had seen these lines, isn't it? settling, what Peak. Vertical Peak settling. time. नहीं तो शुक्राना करना है। सेटलिंग टाइम होता है, राइज टाइम सेटलिंग टाइम सब लोग मानते हैं इसको, इस बात को? Yes, sir. So horizontal settling time or vertical peak time? वर्टिकल सेटलिंग है और हॉरिजॉन्टल पीक टाइम। वर्टिकल सेटलिंग है, Vertical. माची में वैसा इसका वोटिंग से इसका पर वर्टिकल बताइए, सेटलिंग होता है। वर्टिकल पे सेटलिंग टाइम, हॉरिजॉन्टल पीक है। वर्टिकल हमारी सेटलिंग टाइम है। इसका मतलब अगर पॉइंट ए है तो उसमें मेरा सेटलिंग टाइम कुछ है, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मेरा सेटलिंग टाइम ये वाला हो, मैं सपोज कम हो, ठीक है, और ये मेरा राइज टाइम है, नहीं सॉरी क्या है, पीक टीपी सर, हाँ सर, हॉरिजॉन्टल पीक टाइम। ये है राइज टाइम, सेटिंग टाइम, हाँ पीक टाइम, ठीक है। सो ये हमारा पीक टाइम है। मैं चाहता हूँ पीक टाइम ये ना हो बल्कि पीक टाइम ये हो, ठीक है, और मेरा सिस्टम स्टेबल भी हो। तो इसका मतलब मुझे इसके आगे तो जाना नहीं है, स्टेबल हो जाएगा तो इसके अंदर ही रहना है, इसके अंदर ही रहना है, लेकिन सिस्टम को ऐसा डिजाइन करना है कि सिस्टम के अंदर राइज टाइम ये हो और इसका जो है सेटिंग टाइम इसका ये हो। तो ये भी अगर मैं देखूँ इसमें कभी उस गेन को मैं कितना भी इंक्रीज करूँ, it will never touch this point D, isn't it? Because this could be one of the other examples of a system of this nature. Clear? So in these types of things, that's what we call design by root locus. So we use root locus itself, but we do something else. We study something else in terms of controllers in this, let's say, unit. Here we see that we can change the nature of the controller itself so that it doesn't impact the system much, the original system, but the overall system is changed in such a way
that it leads to that performance. Clear? Yes. So we have seen one of the ways could be changing the system itself, which is undesirable. The other could be that we change the controller. Till now we have seen the controller was just the proportional controller, where we just fed in to the plant an error, isn't it? And a multiplier with some constant, it's a proportion to the error. Something was fed to the signal to the plant. But now we'll look at systems where we can add something else also in the controller in itself, which can be located somewhere else, let's say physically. It doesn't impact the system, doesn't load the system, but it can really change the performance of the system as desired. So that's what design via root locus would look like. So one of the ways of looking at it is this way. So similar to what is just given here in the top figure. So if poles were at A, let's say, so I've just drawn these lines. So for example, this was the output design output. Okay, let's say step output, and with poles at A, so I am getting this type of an output where the overshoot is same. Okay, percentage overshoot is same, but it settles down after some time. But poles at B would lead to faster response. Okay, because it's on the same zeta, so the settling time has to be same. So it will lead to same settling time. Sorry, it will lead to same percentage overshoot, but it may itself have a different settling time also. That we'll see later on. This being faster also may finally settle down also early. Okay. So all these three things, that is, let's say zeta, which is related to percentage overshoot, the settling time, the peak time, okay, or the rise time, all these are actually interdependent, or we can say all these are dependent on generally this controller, isn't it? K and other parameters. यानी K को अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, ज्यादा बढ़ा रहा हूँ K को, तो मेरा सिस्टम फास्टर हो रहा है, लेकिन K ज्यादा बढ़ाने से सिस्टम अनस्टेबल भी हो सकता है. ठीक है, तो मैं इतना भी ज्यादा बढ़ा नहीं सकता, और K को ज्यादा कम करूंगा तो स्टेडी स्टेट एरर बढ़ेगा. All these are kind of interrelated things. I cannot just improve something without actually not impacting the others. So my change in one actually will impact the other parameter also. So that's what we call design, where we try to come out at some of the optimal parameters. सर इसमें हमारा सेटलिंग टाइम और पीक टाइम चेंज हो जाएगा ना, जो आपने अभी एग्जांपल बताई सर. हाँ, दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी. सिर्फ हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, हमारा सिर्फ परसेंटेज सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन. और जो इससे पहले एग्जांपल मैंने दी थी उसमें परसेंटेज ओवरशूट भी चेंज होगा, और हो सकता है उसमें हम सेटलिंग टाइम सेम रख पाते हैं, हमने कुछ ऐसा डिजायर्ड था. ठीक है. So for a given physical system, the desired features may not always be obtained by mere adjustment of K. This is what I have just discussed. Root locus may not pass through the pole at which this specific transient response and steady state errors are possible. This is what I have just discussed. You don't need to actually maybe write this. You can just look at the video later on. Changing the system may not always be feasible. That may lead to root locus passing through the desired pole, but rather a compensation. We call them as compensations. So we do something called as compensation techniques in terms of additional poles and zeros could be done that leads to change in the root locus of the compensated physical system, not of the actual physical system, but the compensated physical system. तो एक हिसाब से हम ओपन लूप पोल चेंज कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम की चेंज नहीं करेंगे, कंट्रोलर की चेंज करेंगे. लेकिन क्योंकि कंट्रोलर कैस्केडेड होता है जनरली, तो कंट्रोलर उसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो खुद ब खुद टोटल ओपन लूप पोल सब भी शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, रादर देन चेंजिंग दी क्लोज लूप पोल्स इनिशियली. ऑब्वियसली क्लोज लूप पोल्स को भी उसके बाद इंपैक्ट करेगा 100%, लेकिन शुरू में हमारा क्या पर्पस था, हमें ओपन लूप पोल्स अगर चेंज कर पाएंगे तब रूट लॉकस शिफ्ट हो जाएगा. तो ओपन लूप पोल चेंज करने के लिए हमने कहा था कि सिस्टम को करेंगे तो, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा. इसलिए हम अगर कंट्रोलर के ओपन लूप पोल्स कुछ बनाते हैं और जीरोस बनाते हैं, तो उससे जो है टोटल सिस्टम का जो है ओपन लूप पोल चेंज हो जाएगा, और उससे रूट लॉकस चेंज हो जाएगा और उससे पास करेगा. ठीक है, that passes through the desired point and achieves the desired performance. Clear? Is that clear? Yes. Now, compensators generally are used to improve the transient response and steady state error. ठीक है, तो compensators का पर्पस मेन होता है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट एरर को चेंज करना, जो हमारा मेन पैरामीटर है. स्टेबिलिटी तो 100% है, जो भी हम कंपेंसेट करेंगे उसके बाद सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम स्टेबल नहीं है
So there is no fun of actually doing this compensation and anything else. So obviously we know that stability is subset is one of the prime important actually parameter, and that cannot be compromised. But other things can be changed. But after changing the system, achieving those desired transient response characteristics and steady state error, system has to be stable. Okay. Now I have just mentioned something called as active and passive. Before this even I can just state it. हमारे पास अभी तक कंट्रोलर था जैसे K, ये था हमारा सिस्टम G of S, ये वही था ना सिस्टम एस यूज करे. अब क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, हम सिस्टम को वही रखेंगे, लेकिन क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, यानी सेम चीज है, बाकी सारा फीडबैक भी लेट से यूनिटी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है लेकिन फिलहाल यूनिटी है. ठीक है, हम कह रहे हैं कि क्या हम कंट्रोलर, यहाँ सिंपल गेन है, यहाँ हम इसको कह सकते हैं कंपेंसेटर. तो क्या हम प्लांट को सेम रखकर नो चेंज, क्या हम यहाँ कुछ चेंज कर सकते हैं? क्योंकि अगर यहाँ चेंज कुछ करेंगे हम, उससे क्या होगा, अगर मैं सपोज को भी लिखता हूँ रफली k इंटू एस प्लस जेड बाई एस प्लस पी, P1 P2 भी लिख सकते हैं, Z1 Z2 भी लिख सकते हैं. इससे क्या होगा, इससे हमारा जो कंट्रोलर बनेगा इन दो को मल्टीप्लाई करके, वो क्या होगा k इंटू एस प्लस जेड जी ऑफ एस लेट से डिवाइडेड बाई एस प्लस पी. चलो ये हमारा सिस्टम बनेगा. ठीक है, तो जी ऑफ एच चूंकि सिंगल न्यूमरेटर तो है नहीं, इसमें तो डिनोमिनेटर भी होगा बिकॉज इसके साथ भी पोल्स वो होंगे. ये हमारा क्या है, अब सपोज जी डैश एस, बताइए क्या है, ये ओपन लूप ट्रांसफर होंगे क्लोज लूप? सर क्लोज, ये ओपन लूप है सर. ओपन लूप, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, लेकिन मॉडिफाइड हम कह सकते हैं इसको. ठीक है, मॉडिफाइड है. तो इसके जो पोल्स और जीरोस होंगे वो क्या होंगे, वो ओपन लूप पोल्स होंगे, है ना, है ना. आसान है, ओपन लूप पोल्स हैं. और अगर तम सीधे रूट लोकस बनाओ तो रूट लोकस क्या इसमें शिफ्ट होता है, रूट लोकस में जी रूट देता है, इसमें गए तुम शिफ्ट, तो रूट लोकस के शिफ्ट ऐसे कौन रूट लोकस शिफ्ट करे, रूट लोकस तम पास करने में तम पॉइंट व्हिच इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. आए समझ? कंपेंसेटर मतलब हम कुछ जीरोस ऐड करेंगे और हम कुछ पोल्स ऐड करेंगे. समझ, कभी सिर्फ जीरो ऐड करेंगे, कभी सिर्फ पोल ऐड करेंगे, कभी दोनों ऐड करेंगे. इस तरह की चीजें हैं. इनसे हम प्लांट को चेंज नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल हमारा जो ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होगा और उससे हमारी जो रूट लोकस भी शिफ्ट होगा और हम उसके थ्रू जा सकते हैं. अब ये Z और P क्या है, कैसे करना है, इसी को हमें देखना. सर इसमें आपने एक चीज बताई थी पहले जब स्टार्ट किया था लेक्चर, के जो प्रोपोर्शनल होता है वो एरर के प्रोपोर्शनल होता है, तो वो चेंज जनरली उसका नेचर जो है एरर का वो चेंज नहीं होता. वो नेचर ऑफ एरर चेंज नहीं. नेचर ऑफ एरर मींस क्या है? अगर हम लोड अलग अलग वेरी करेंगे, नेचर एरर देखिए, अब जो यहाँ पर है ना ये एस प्लस जेड एस प्लस पी, इसकी वजह से नेचर ऑफ एरर चेंज हो जाएगा. कैसे, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास एरर है इस तरह, ये आर ऑफ एस है, ये सी ऑफ एस आ रहा है ना वहां से, तो ये क्या है हमारा ई ऑफ एस. ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, के से मल्टीपल हो रहा था, ये के इंटू ई एस हो रहा था. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं एक एस, एस क्या होता है, डिफरेंशिएटर. हाँ जी उमर साहब, सर डिफरेंशिएटर, एस क्या होता है, डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर एंड 1 by s था इंटीग्रेटर और s डिफरेंशिएटर. हाँ ये क्लियर है ना आपको, एस क्या होता है? मैंने उस दिन दिखाया था पूरा रफ पे ही, ऑनलाइन लेक्चर में ही दिखाया था मुझे लगता है. हाँ जी, बाकी लोग सुन रहे हैं? यस सर. आकिब, असरार, फलक, फतेह, जुनैद, महरूज, दानियाल, सर. तस्दीक. जी सर. तो एस क्या होता है, मैंने ये पिछली बार दिखाया आपको पूरा रफ पे, इसमें मेरे रिकॉर्डेड में ही होगा. एस होता है डिफरेंशिएटर. हाँ सर, लिखा है इसके याद वर्जन आसान शिंगित सर डी बाय डी टी लिखते हैं ना इसको कोई ना, एस ट्रांसलेशन डी बाय डी टी को शिल्पट लैप्लास डोमेन, which means टाइम डोमेन. डी बाय डी टी मतलब को एस असली को ना, मतलब
बेसिकली डिफरेंशिएटर। अगर मैं यहाँ s डाल रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, मैं एरर को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइडेड s के साथ, है ना। तो e ऑफ s आएगा ना इस तरह, ये आएगा आउटपुट, प्लॉट के लिए है ना। अब अगर ये मैं डालूंगा प्लांट को, तो प्लांट को इनपुट अब क्या जा रहा है, डिफरेंशिएटेड एरर, है ना। अब प्लांट को प्योर एरर नहीं जा रहा, बल्कि एरर का डिफरेंशिएशन, यानी चेंज इन एरर। समझ रहे हो आप, समझे वहाँ Yes, sir. मैथमेटिकली समझ लो फिलहाल। मैथमेटिकली को ना अगर मैं ब्लॉक्स में डिफरेंशिएट तो ओतान क्या हो सकता, ओतान हो सकता इतकन योस एरर सॉरी योस के पतो जितकन हो सकिन ना, तो जी ऑफ एस ओतान क्या होगा सन योस ई ऑफ एस, ये सिग्नल सन के इनटू ई ऑफ एस, ना सही सिग्नल के इनटू, सो योस एरर है मगर प्रोपोर्शनल विद गेन एरर ओस चेंज गसन, ये एरर ओस ती योस एरर, ये तो मगर एरर डिफरेंशिएट चेंज हो डिफरेंशिएट आवा समझ। इथा कनी अगर बह यह त्राव इतकन 1/s पद बना प्लांट किश में कंट्रोलर उसमें होता है, ये कंट्रोलर ये वांचन कंट्रोलर एरर छु ना ये, ठीक है। और क्या बता रहा हूं 1/s क्या को Integrator. integrator, so my signal now is Integrator. यस integrated error, integrated values of error switch गसा input plants chun गसा proportion value क्या chun integrated differentiated value integrated error chun value input to the plant, ठीक है। ठीक है, मान तो सोदी कथा अगर इमेजिन छु मान तो कोशिश पर अगर इमेजिन छु एरर सिग्नल जन में आई switch यवान रैंप, यानी बुश वना एरर हसा छु बड़ा अगर मान ले टाइम डोमेन ना एरर हसा टाइम से बड़ा, एरर टाइम से बड़ा छु ना। अगर मतलब है एरर है बड़ा ठीक है, एरर बड़ा एरर डिफरेंशिएटर कूत बड़ा अमिक डिफरेंशिएशन अगर चेंज कूत गसा एरर सर वो होगा ना स्लो चेंज आती कांस्टेंट, ये ना ये क्या ही det by dt विस दपान कंट्रोलर त्रावता वन चेंज गसान कहें एरर बाकी एरर बढ़ान मगर चेंज गसान क्या, ठीक है। हो कस और अमिक इंटीग्रेटर क्या है, The higher often the double. पैराबोला ऐसा ये गो इंटीग्रेशन ऑफ एरर विस दपान टाइम हसा इंटीग्रेट करें एरर को वैल्यू एक्यूमुलेट गसान वैल्यू है ना बड़ा अमिक एरिया इंटीग्रेशन वास्ते एरिया उस एरिया वारिया एरिया बढ़ान बड़ा इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, बिकॉज एरो अगर एक इंसान सिंपली करेगा इंटीग्रेटर उसकी बात t स्क्वायर बाय 2 ये कितना Parabolic function. तो गो बहक अगर मैं सिस्टम को एरर योता स्पाई तम से अगर करना सिस्टम पर के कंट्रोल करन कोशिश हेकु एमसी गस कोने लेवल तम, मगर अगर बेसना इंप्रूव करन सिस्टम विश दपा तम एरर डिफरेंशिएटर ति में तम इंटीग्रेशन ति में बहक सिस्टम वारे असल बने साव समझ ये पर असली एच वन PID प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर कंट्रोल, ठीक है। फिलहाल चुने सी करके इस लास्ट पर वुचन फिलहाल वच वस प्रोपोर्शनल आवाज समझ गो सिंपल गेन आवाज समझ, Yes. मगर आख चीज से याद ये में वो ना डिफरेंशिएटर जी प्योर डिफरेंशिएटर s ये प्योर इंटीग्रेटर I 1/s अच्छा ना प्योर डिफरेंशिएटर, ठीक है। आता है समझ अच्छा बाउंस भी होतो वो कंपेंसेटर इस्तेमाल इस लेखा s plus z s plus p वन वेन दी सब तो ये s लगावन कि s plus z क्या हो s plus p क्या हो, ये मन से बनान kind of not pure or you can say they are not pure differentiator, they are also differentiator but they are not pure differentiators, or s 1/s plus p is not a pure integrator but it is still an integrator, isn't it। 1/s plus p क्या दोनों में इंटीग्रेशन है कि ना, but there is a pole, there is a shift in this, there is a shift in this, so what it means actually why s and why s plus z s to s plus z क्या फर्क है, s छु तो s plus z छु ये दोनों क्या फर्क है Sir, ये shift ये मन फर्क ये कि हाँ ये दोनों डिफरेंशिएटर, ठीक है। या वन प्योर ये सिर्फ डिफरेंशिएशन ये शिफ्ट गसान, ठीक है, शिफ्ट वो अम ये डिफरेंशिएटर मन बेसिकली फर्क वन एक्टिव तो पैसिव,
ठीक है Yes, sir. कंपेंसेटर से जनरली आसान कंट्रोलर से जनरली अगर तुझी जहन में याद कंट्रोलर से जनरली आसान इलेक्ट्रिक इन नेचर या इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर ठीक है Yes, sir. मतलब मैकेनिकल थी ऐसा आसान तो मगर मैकेनिकल जनरली ज्यादा अगर मैकेनिकल सिस्टम आसान कंट्रोल करने से कंट्रोल सिस्टम थ्योरी थी डेवलप गई सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पता है पता नहीं इलेक्ट्रिकल साइंसेस दी बड़े नहीं याद ना ब्रॉड so control system all generally in general if we say controllers they are all more of electrical in nature ठीक है जब हम कंपेंसेटर या कंट्रोलर की चलो बात करते हैं पूरा सिस्टम तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल है लेकिन जो इसका इलेक्ट्रो पार्ट होता है या इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है प्योर इलेक्ट्रिकल पार्ट वो जनरली इसका कंट्रोलर होता है या इट कुड बी इलेक्ट्रॉनिक और इट कुड बी डिजिटल कंट्रोलर ठीक है Yes, sir. what active and passive actually would mean active ones are something like which are pure ठीक है which are implemented by pure can say compensators ठीक है and the passive ones are the one which are not pure let's say ये s plus z s plus ये वाला ठीक है ये मैं आगे थोड़ा आपको बताऊंगा इसके लिए आपके हम आगे भी इसके थोड़ा समझ सकते हैं इसको तो अब कंपेंसेटर हम दो तरह के यूज करते हैं जनरली ठीक है मैंने ऊपर ये जो चीजें बताई है मैंने कि ये रिलेटेड होते हैं स्टेडी स्टेट एरर या ट्रांजिएंट रिस्पांस वगैरह के खाली फायदेमंद नहीं हो सकता है तो कंपेंसेटर हम दो तरह की यूज कर सकते हैं एक को कहते हैं हम कैस्केड कंपेंसेशन जिसमें हम कंपेंसेटर लगाते हैं प्लांट के साथ ही कैस्केडेड ये हमारा ओरिजिनल कंट्रोलर है विच कुड बी सिंपली के कैपिटल के और ये वही एस प्लस जेड बाई एस प्लस पी इस तरह की चीजें हो सकती हैं तो इसको हम कैस्केड कर सकते हैं ताकि इसके साथ मल्टीपल होकर इसका मल्टीपल होकर टोटल ट्रांसफर फंक्शन बनेगा जिसके ओपन लूप पोल्स और जीरोस बदल सकते हैं दूसरा तरीका है फीडबैक कंपेंसेशन जिसमें कंट्रोलर वही है प्लांट वही है लेकिन हम कंपेंसेटर नीचे लगाते हैं ठीक है फीडबैक लूप में इस केस के अंदर भी ये भी इसके ऊपर चेंजेस ला सकता है इसके क्लोज लूप पोल्स के अंदर ये ओपन लूप जो चेंज नहीं करेगा लेकिन क्लोज लूप इसको देखते हैं इफ वी गेट टाइम वी विल स्टडी दिस आल्सो बट दिस इज अनदर वे ऑफ एक्चुअली लुकिंग एट द कंट्रोलर एंड देन improving the performance of the system but we will see more of these type of compensators which are cascade ones that will even cover our PID and other compensators also इनकी एक ही डिसएडवांटेज होती है जो हम कंपेंसेटर लगाते हैं जरा कोई बता सकता है आप में से क्या हो सकता है जब मैंने ये कंपेंसेटर लगाया फायदा तो हो गया कंट्रोलर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है रूट लोकस वहां से पास कर सकता है लेकिन नुकसान क्या होगा इस वजह से सर ऑर्डर होता है इंक्रीज इसका सिस्टम का ये जो है यहाँ पर जी ऑफ एस का कुछ ऑर्डर था ना सिस्टम का सब ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम था ठीक है जब मैं ये ऐड करूंगा इसमें तो एस और एस मल्टीप्लाई होगा ना इसका ऑर्डर क्या बनेगा अगर ये एक ही यहाँ पर एस प्लस पी है एक्स क्यूब वो ना सिस्टम ऑर्डर क्या हो इंक्रीज हो गया बढ़ सिस्टम ऑर्डर अगर बढ़ेगा उससे क्या फर्क पड़ेगा complex calculations कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से मैथमेटिक्स मगर तम से क्या फिजिकली फर्क क्यों एरर मतलब type of the system has changed so it can even change the transient response it can change the steady state error it can change everything isn't it if we are changing the system response it can change anything because we are changing the system is totally different from the previous system poles add करना थोड़ी कोई ऐसे ही हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं so it can completely change the system itself the performance itself ठीक है so that is theoretically a disadvantage सर लेकिन हमने बोला an increase in the system order सर हाँ लेकिन हमने बोला ना सर हम कंपनसेटर इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमें डिजायर्ड स्टेडी स्टेट रिस्पांस और ट्रांजिट रिस्पांस मिले तो सर ये फिर डिसएडवांटेज कैसे हो गया अगर ये उसको चेंज कर हाँ लेकिन मैंने कहा कि हमें चूज करना है जेड और पी को ऐसा अच्छा ठीक है किसी जेड ते पी छो ना या अगर इस चूज को न ठीक पे कहीं आर्बिट्री क्या ते अच्छा, त्राव ठीक। ये करने तप पास ते कहीं बेकारी सिस्टम टोटली ड्रास्टिकली ठीक। चेंज यह छ डिजाइन अलबत्ता थ्योरेटिकली छ एग्री करन कि थ्योरेटिकली ऐसा कैसे ऑर्डर इंक्रीज बाकी चीज है चेंज गए पर क्या तम पत है इस जेड ते पी ऐसा चेंज कर सकते हैं हम कि ये उस बिहेवियर को ही बिहेवियर को वैसा ही रखे लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करें ठीक है
इसको हम कहते हैं जनरली कंट्रोलर में हायर ऑर्डर पोल्स, दे कैन समटाइम्स बी डोमिनेंट, दे कैन बी इनडोमिनेंट, लेट्स से दे कैन, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पोल जीरो कैंसिलेशन, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन हमारे पास ऐसा एक होता है कॉन्सेप्ट पोल जीरो कैंसिलेशन। अगर वैसा होता है ना, जीरो और पोल बहुत नजदीक है, ये वाला जीरो और ये वाला पोल नजदीक है काफी, तो ये लगभग आपस में कैंसिल, इनका इम्पैक्ट जो है ना जो सिस्टम ऑर्डर पे वो कुछ खास पड़ता नहीं है। दो सिस्टम बिकम्स थर्ड ऑर्डर, लेकिन इनका जो ट्रांजिएंट बिहेवियर है उस पर कोई असर पड़ता नहीं है, इसमें हम देखेंगे अभी। So that's why proper location of additional open loop poles and zeros will yield the desired second order closed loop poles. ठीक है, अगर हम एडिशनल जो ओपन लूप पोल जीरो हमने ऐड किए हैं कंपेंसेटर जैसे, तो उसको अगर हम प्रॉपर लोकेशन ऐसी देंगे, हमारा जो फाइनल ऑर्डर बनेगा सिस्टम का, तब भी वो उसका और सेकंड ऑर्डर जो उसका अभी पहला था लेट्स से, वो लगभग सेम रेस्पॉन्स होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं जनरली कंट्रोल स्टडीज में सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशंस, क्योंकि सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ही हम जीटा ओमेगा एन ये इस तरह की चीजें हम डिफाइन करते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए तो हमने नहीं किया ना वैसा कुछ डिफाइन, लेकिन हमने देखा कि हम थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर के लिए भी वैसा बना सकते हैं, लेकिन वो तब होता है जब हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है उसको अप्रोक्सीमेट कर पाए, यानी उसकी जो फीचर्स हैं, उसकी जो रिस्पॉन्स है लगभग सेम आना चाहिए जो हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। तो एक्टिव कंपनसेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अभी हमने देखा एक्टिव और पैसिव हो सकते हैं कंपनसेटर्स, ये प्योर इंटीग्रेटर को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, फॉर दे जनरली डिक्रीज स्टेडी स्टेट एरर टू जीरो। अच्छा, ये आपने अगर आपको याद होगा जो हम स्टेडी स्टेट एरर हमने जब पढ़ा तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर हम प्योर इंटीग्रेटर ऐड करते हैं सिस्टम के साथ तो उससे हमारा एरर जीरो जाता है। वो क्यों है, क्योंकि इससे हमारा टाइप सिस्टम का बढ़ता है। टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू हमने पढ़ा था। हमने देखा अगर टाइप जीरो में कुछ एरर है, जैसे अगर टाइप वन करेंगे स्टेप इनपुट के लिए तो उसका एरर जीरो आएगा, क्योंकि जो इंटीग्रेटर है दैट ड्राइव्स द एरर फाइनली टू जीरो। तो ये आपको थोड़ा सा स्टेडी स्टेट एक बार थोड़ा रिविजिट कीजिए आप। तो ये हम इसमें प्योर इंटीग्रेटर होता है या प्योर डिफरेंशिएटर होते हैं। डिफरेंशिएटर जनरली ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के लिए इंप्रूव करने के लिए किया जाता है यूज, और स्टेडी स्टेट एरर को कम करने के लिए हम इंटीग्रेटर यूज करते हैं जनरली। ये आपको याद रखना है, जैसे एस और 1/s मैंने अभी दिखाया था आपको। इनको हम इंप्लीमेंट करते हैं एक्टिव एम्पलीफायर से, जिसको हम कहते हैं ऑप-एम्प्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। अगर आपने पढ़ा होगा ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, वी हैव समथिंग कॉल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। दे आर नथिंग बट दे आर काइंड ऑफ small ICs which are actually having BJTs, transistors inside, but they are generally used as amplifiers. So again ये जो गेन वेन जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ theoretically, उसी से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इनमें एक ही प्रॉब्लम होती है ऑप-एम्प्स में, ये मैंने कुछ खरीदे थे, मैं सोच रहा था आपको दिखाऊं भी, हमारी किस्मत आस्तिल इंशाल्लाह बचो। तो इसमें एक ही डिसएडवांटेज होती है, इसमें एडिशनल पावर रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, अलबत्ता एडवांटेज इसकी यही है कि इसमें एरर हमारा जीरो जा सकता है, क्योंकि हम प्योर इंटीग्रेटर 1/s इंप्लीमेंट कर सकते हैं और प्योर डिफरेंशिएटर s को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो चीजें हम कोशिश करेंगे, वही चीजें हम डायरेक्टली यूज कर पाते हैं कंपेंसेटर्स में 1/s और s ही, क्योंकि उससे हमारा जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो चीज मीट हो जाएंगी। लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि हम उसके अलावा भी एक और तरीका है जिसको कहते हैं पैसिव कंपेंसेटर्स, जो हमारे नॉन आइडियल कंपेंसेटर्स होते हैं, जिनमें हम प्योर डिफरेंशिएटर नहीं यूज करते हैं बल्कि s+a यूज करते हैं, या प्योर इंटीग्रेटर यूज नहीं करते हैं बल्कि 1/s+a, s+b यूज कर सकते हैं। इस तरह की चीजें यूज करते हैं। ये क्या मतलब है इसका, ये जो मैं कह रहा हूँ जबानी, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है एक्चुअली कंट्रोलर की, ये होती है थ्रू पैसिव एलिमेंट्स। इसके अंदर जो रजिस्टर कैपेसिटर से हम बना सकते हैं, यानी हम रजिस्टर कैपेसिटर लगा के ही पूरे कंट्रोलर का पोल वोल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम ऑप-एम्प से कर सकते हैं, लेकिन ऑप-एम्प्स अगर हम करेंगे यूज तो उससे हम प्योर इंटीग्रेटर और प्योर डिफरेंशिएटर कर सकते हैं, जिससे हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। लेकिन इससे भी हमारी परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी बल्कि इंप्रूव हो जाएगी फिजिकली। लेकिन अब वही होता है कि इसमें एक एडवांटेज है, वी डोंट रिक्वायर एनी एडिशनल पावर सप्लाई। ओनली डिसएडवांटेज इट मे लीड टू सम फाइनाइट एरर व्हिच इज नॉट ड्रिवन टू जीरो बट टू सम एक्सटेंट व्हिच इज एक्सेप्टेबल। ये चीजें आपको इस वक्त ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है इसमें बीच में, तो हम मैथमेटिक्स देख रहे हैं इस वक्त। लेकिन ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क है कंपेंसेटर्स में। ठीक है, यस सर। तो अभी हमने अभी देखा कि हम इसका जो आइडियल इंटीग्रेटर कंपेंसेटर है, अब दो तरह के हम पढ़ेंगे। हमें हमारा बेसिक पर्पस रहेगा इंप्रूविंग टू थिंग्स। अभी जो हमने देखा, या तो हम इंप्रूव कर सकते हैं स्टेडी स्टेट एरर, या हम इंप्रूव कर सकते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स।
ठीक है। ट्रांजिट रेस्पॉन्स में हमारा आएगा राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, परसेंटेज ओवरशूट। स्टेडी स्टेट एरर में हमारा आएगा स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है। स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि जो भी हम सिस्टम डिजाइन करेंगे उसको हम फाइनली टेस्ट कर सकते हैं कि स्टेबल है कि नहीं। ठीक है। तो हमारी जो भी सिस्टम अब रहेगा इसके बाद, उसमें यही रहेगा कि या तो हमें स्टेडी स्टेट एरर इंप्रूव करना है या हमारा ट्रांजिट रिस्पॉन्स इंप्रूव करना है। अब हम स्टेडी स्टेट एरर को जब लेट्स से शुरू में देखेंगे, पहले इंप्रूविंग स्टेडी स्टेट एरर लेट्स से फॉर अ कंट्रोलर। नाउ दिस कैन बी डन via two ways. Obviously we are doing cascade compensation only for the time being, we don't take up feedback compensation here. अब कैस्केड कॉम्पेंसेशन भी दो तरीके से कर सकते हैं। इसमें हम या तो आइडियल कर सकते हैं, नॉन आइडियल। आइडियल क्या था? एक्टिव एम्पलीफायर से या एम्पलीफायर से। नॉन आइडियल है विद पैसिव सर्किट्स लाइक रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। कहने का मकसद है आइडियल मतलब S या 1/S, और जो नॉन आइडियल है वो S+A या 1/S+A, इस तरह की चीजें। ठीक है। तो हम जो अभी आइडियल नॉन आइडियल की बात करेंगे, आइडियल मतलब जिसमें कोई जीरो और पोल है नहीं एक्स्ट्रा, लेकिन नॉन आइडियल क्या है? जिसमें जीरो और पोल हम कुछ एक्स्ट्रा डालेंगे। ठीक है। तो हम शुरू करेंगे आइडियल इंटीग्रेटर कंपेंसेशन से। ठीक है। इट्स ऑल्सो रेफर टू एज proportional plus integral controller because we have a proportional P and an integral, because we have an error which is driven in such a form that it is proportional to the error and also integration of the error, which is something like this. ये जो यहाँ पर है K/S मैंने यहाँ लिखा है। So initially we have a system which has a simple gain K and it's a plant G of S. So the error that comes out from here, which is E of S, is simply multiplied by gain and it's fed to the plant. And let's assume this leads to something like this type of a root locus. ठीक है। So this root locus means let's say it has some pole, 3 poles. ठीक है। And let's say 3 zeros which are at infinity. So it has no poles, it has nothing in the numerator, it has just a constant in the numerator, and denominator it is of third order system. Let's say it has 3 poles, open loop poles 1, 2 and 3, and root locus will obviously be to the left of the odd number, which is 1. So root locus will be between this and this pole, and from this pole to the infinity, left of the infinity. ठीक है। So we know that as the gain is increased, this will go like this, and these will move this way and go in this form. Let's say this is one of the examples. Now any point of interest like A, which is our design point, where it will have some kind of zeta, it will have some TS, it will have some TR and other things. Let's say if this is the point of interest, so if this is the point of interest, this has to be on the root locus of the compensated system. अगर ये रूट लोकस पे होगा तो इसके क्या होंगे? पोल्स के जो भी हैं या जो जीरोस भी अगर होते, उनका जो एंगल सम होता वो क्या होना चाहिए था? 2k + 1 × 180, है ना। क्योंकि नेगेटिव मैंने इसलिए लिखा क्योंकि पोल्स का माइनस होता है, जीरोस का पॉजिटिव हम लेते हैं। सो -θ1 -θ2 -θ3 हैज टू बी फंक्शन ऑफ 2k + 1 × 180, where k can be ±1 also or 0 also, and then ±2 and so on. ठीक है। Now when I am adding a compensator like this, K/S, so instead of capital K just, I am adding an ideal integrator, ठीक है, which can be added just by adding another block here, and where I write 1/S, but that finally means K/S itself. तो K/S लिखना या 1/S अलग लिखना फिर K अलग लिखना एक ही बात है। तो मैंने यहाँ इसको कंपेंसेटर नाम दिया, यहाँ सिंपली हमने गेन नाम दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो कंपेंसेटर अब क्या होगा? ये आइडियल इंटीग्रेटर कंपेंसेटर होगा। लेकिन चूंकि यहाँ प्रोपोर्शनल भी है हमारे पास, तो हम इसको प्रोपोर्शनल इंटीग्रल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो नाउ दिस इज फेड टू द प्लांट, लेट्स से, though it actually is just an ideal integrator. I'll just show you the final one. So this should, what will this happen? This will put up another S in the denominator of G of S, let's say of the G1 of S, which means a pole will be added to the overall forward transfer function. A pole will be added at S is equal to, बताइए पोल कहाँ ऐड होगा? 0 origin. K/S means S is equal to 0. तो origin पे जब पोल होगा तो इसके रूट लोकस ऐसा चेंज होगा। सर ये मगर सर अभी तक रूट लोकस ये था, ऑसिलेटरी होगा ना, ये अनस्टेबल होगा सिस्टम शायद, मतलब जब हम पोल कौन सा? करेंगे एट ओरिजिन पे। नहीं, एक पोल ओरिजिन पे डालने से थोड़ी अनस्टेबल होगा। सर मतलब ऑसिलेटरी हो सकता है, हाँ। फाइनल वैल्यू भी उसका नहीं होगा स्टेडी, मतलब हाँ, नहीं उसके बाद भी आपको ये देखना है कि जस्ट ये
open loop pole है aşağı root locus यहाँ इतकेन वो pole है कि इतकेन पे गिरा इसका चूवर का सीन है ना open loop pole है आवाज समझ सर तो फैल अच्छा हम इसको लूप की वजह से यस सर तो फैल साहब मतलब इस फिलहाल open loop pole है ना सिस्टम होगा ना सर, सिस्टम ऑसिलेटरी होगा ना। हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ अब आपने जो पोल ऐड किया यहाँ पे 0 पे तो वो क्या है फिलहाल ओपन लूप पोल ही है ना। ओपन लूप पोल से थोड़ी हम जब के बढ़ाएंगे तो हमारा इस तरह रूट लोकस मूव करेगा ना क्लोज लूप पोल से, यस सर है ना शिफ्ट हो जाएंगे। स्टेबल है ना। ठीक है तो कहने का मकसद है अभी ये था अब ये बन गया। सो दिस चेंज अकर्ड बिकॉज ऑफ जस्ट एडिंग ए कंपेंसेटर लाइक दिस। लेकिन अभी मैंने जो कहा प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल तो होगा लेकिन ये थोड़ा मैंने गलत कहा। के बाई एस जब होगा तो ये के तो हम कांस्टेंट ही मान सकते हैं लेट्स से, अगर हम कांस्टेंट मानेंगे, लेकिन 1/s ही है फाइनली। ये सिर्फ इंटीग्रेटर है। अगर हम आइडियल इंटीग्रेटर खाली लगाते तो के बाई एस भी 1/s लिख सकते हैं। वो हमें एक प्लस के होना चाहिए अलग से एरर को, अभी हम दिखाऊंगा मैं आपको। तो अगर हम इस तरह सिर्फ आइडियल इंटीग्रेटर लगाते हैं इसका मतलब एक जीरो हम ऐड कर रहे हैं, सॉरी एक पोल ऐड कर रहे हैं एट ऑरिजिन, तो वो यहाँ से आएगा। तो रूट लोकस विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द ऑड। लेफ्ट ऑफ द ऑड मीन्स फ्रॉम हेयर टू हेयर and then 1 2 3 from here to here. So root locus will now change like this. So these two red lines curves actually depict the change in the root locus now. So the root locus has changed because of adding a ideal integrator, or you can say an pole at the origin. It has changed like this. But the point of interest was this point A. Now this point is not on the root locus. What it means is if you add these angles contribution from these poles now to this point A, they will not be a multiple of 180 degrees. They will not be an odd multiple of 180 degrees. Is it clear? Yes. You might see root locus. No, Point. अगर हमारा point is but angle contribution छांड होती है so my near 180 का root locus की definition नीचे का angle contribution कोणती point पुढे जाऊन an odd multiple of सर हम 180. कंपनसेटर इसीलिए करते हैं ना यूज, सो दैट हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्रीवियस केस पे ए था हाँ वहां पे हम इसका ट्रांजिट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट। हाँ तो अब हमें तो इसीलिए अब हमें कंपेंसेटर ऐसे मॉडिफाई करना है कि वो यहाँ से जाए रूट लोकस, ना कि यहाँ से। अश्विश्वन ये कि अगर सिर्फ आइडियल इंटीग्रेटर त्राउन आइडियल इंटीग्रेटर खाली आई कंट्रोलर त्राउन पी आई नहीं क्या खाली आई कंट्रोलर लेट्स से ये खाली पी कंट्रोलर अगर खाली आई त्राउन ठीक है। इसमें क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है ना फाइनली एरर का, तो के तो जस्ट मल्टीपल होगा न्यूमरेटर में लेट्स से, उसके साथ एरर का कोई ताल्लुक नहीं है। खाली के होता तब तो हम कह सकते हैं के इंटू एरर था, लेकिन ये असल में 1/s ऑफ एरर हो रहा है अब मल्टीपल। तो अगर खाली इंटीग्रेटर करेंगे तो कंट्रोलर ऐसा हो जाएगा दैट विल नॉट पास थ्रू दिस पॉइंट, सो दिस इज अनडिजाइंड। सो व्हाट कैन बी डन सो दैट दिस गोज थ्रू दिस पॉइंट एंड आल्सो हैज सिमिलर रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक्स एज द ओरिजिनल सिस्टम। ठीक है, सो व्हाट वी डू इज वी ऐड द कंपनसेशन pi in this way, let's say this way. So rather than just k by s, we say ks plus a by s. So what we are doing is we are adding a zero at the origin, but we are trying to add, यहाँ पर ये क्यों हुआ ये चीज जो यहाँ पर बन गया, क्योंकि सिस्टम का ऑर्डर चेंज हो गया। सिस्टम बन गया लेट्स से थर्ड ऑर्डर, या सॉरी ये थर्ड ऑर्डर था ना 1 2 3, सिस्टम बन गया फोर्थ ऑर्डर 1 2 3 4, और फोर्थ ऑर्डर सिस्टम ऑब्वियसली पन अलग फीचर्स ना कैरेक्टरिस्टिक्स तेम हम कैरेक्टरिस्टिक्स वो अलग अलग हैं। लेकिन हम तो चाह रहे थे कि वो सेकंड ऑर्डर के सॉरी इसके अप्रॉक्सीमेट ही हो जाए वापस और ए के थ्रू भी जाए। उसके लिए हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, समथिंग कॉल्ड एज पोल जीरो कैंसिलेशन। अभी हमने जीरो पे पोल तो ऐड किया, ठीक है ना, एस इज इक्वल टू जीरो पे। क्या हम जीरो भी कुछ ऐड कर सकते हैं इसको कि वो पोल और जीरो के साथ कैंसिल करें? वो अगर जीरो इस वक्त हमारा पोल जो है वो जीरो पे है ना, ये वाला, यस सर, ये जो हमने के बाई एस ऐड किया ऊपर, उसमें पोल कहाँ हमने ऐड किया? एट ओरिजिन, जीरो पे एट ओरिजिन। क्या हम उस पोल को कैंसिल कर सकते हैं? दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पोल जीरो कैंसिलेशन, उसमें क्या होना चाहिए? पोल और जीरो बहुत नजदीक होना चाहिए। इसका मतलब क्या हम एक जीरो ऐड कर सकते हैं इन दिस फॉर्म? अगर हम इस तरह लिखते हैं ना के एस प्लस ए, इसका मतलब इसका जीरो क्या आएगा? माइनस ए पे आएगा ना इसका जीरो, ठीक है। यानी ए की लोकेशन नियर अबाउट जीरो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पोल के कहाँ पे? जीरो पे। यस क्लियर?
यानी अस कोर पोल ऐड एट 0 अस करोन 0 अख ऐड नियर टू जीरोस वैल्यू ऑफ जीरोस तम से वो क्या गई। अच्छा 1/s क्या शुभ बनाते बाबा, हम क्यों 1/s कर रहे हैं, हम तो 1/s प्लस ए भी कर सकते थे, जब हम इसलिए करेंगे हम सर जब हम ये जीरो भी ऐड करेंगे तो उससे हमारी जो इनिशियल जो हमारी मतलब हमारी जो फंक्शन होगी क्लोज सर वो फिर थोड़ी मतलब सेम ही रहेगी ना, क्योंकि हम ऐड भी करें फिर कैंसिल भी हो रहा है वो। हाँ लेकिन s प्लस ए है ऊपर, नीचे हम s कर रहे हैं यूज, वो हम पढ़ेंगे, उसको कहते हैं लैग लीड कंपेंसेटर्स। इसका जो है ना पैसिव, ये हम जो पढ़ रहे हैं ना अभी आइडियल इंटीग्रेटर, ये हमारा है पी आई कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, और उसको अगर हम पढ़ेंगे ना उस तरीके में एस प्लस जेड बाई एस प्लस पी, उस तरीके में हम उसको कहते हैं लैग कंपेंसेटर और लीड कंपेंसेटर। ठीक है, हम पढ़ेंगे। सर तो यहाँ पर हम क्योंकि आइडियल कर रहे हैं यूज सर 1/s। सर हम इसमें हमेशा मतलब एक पोल एक जीरो ऐड करते हैं कि मतलब कुछ साथ कोई से पोल तो ऐड वुचन जरूरत क्या जरूरत क्या कंट्रोलर बनाओ यम सो रूट लोकस मॉडिफाई गई और M3 पास करे, अननेसेसरी क्या बड़ा ओके जीरोस द इसमें पोल्स। सर कुछ साथ इसका सिचुएशन मतलब देखो मैथमेटिकली तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी डाल दो यहाँ पर, उसको भी इवैल्यूएट करो, लेकिन दैट विल गिव यू अगेन अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। What you are trying to do, why are you trying to put 1/s here, is because you know that if I add a system order अगर मैं बढ़ाऊंगा, मुझे पता है स्टेडी स्टेट एरर्स का जीरो हो सकता है। तो मैंने देखा टाइप जीरो का स्टेडी स्टेट एरर अगर फाइनाइट है, उसको अगर टाइप 1 करेंगे स्टेप इनपुट के लिए तो जीरो बन सकता है उसका एरर। तो मेरा मकसद ये है इसको एरर को जीरो करना। तो मैं कह रहा हूँ मैं 1/s सिस्टम में ऑर्डर बढ़ाऊंगा इसको, लेकिन उससे मैं क्या कर रहा हूँ, असल में मैं मैथमेटिकली उससे पोल बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे ऑरिजिन पे, लेकिन वो पोल बढ़ाने से क्या हो रहा है, मेरा रिस्पॉन्स ही चेंज हो रहा है। अब वापस लाने के लिए उसको क्या करूंगा, मैं पोल जीरो कैंसिल करूंगा मैं, तो मैं एक जीरो ऐड करूंगा जो उस पोल के बहुत नजदीक होगा। तो मैं एस प्लस ए लिख रहा हूँ, तो ए को मतलब मैं ऐसा रखूंगा जो जीरो के नजदीक हो, फिर मैं उसको देखूंगा क्या होगा। अब देखो, अब मैं जब जीरो ऐड कर रहा हूँ, ये जो पोल है ना जीरो पे जो अभी ऐड किया ये वाला, इसके नजदीक में रखता हूँ। अब कौन सा, जीरो ये जीरो एस प्लस ए, तो मैं अपना नजदीक वार नजदीक, अगर जीरो चाहिए सपोज 0.001 सपोज, अब क्या होगा, रूट लोकस कैसे स्टार्ट ऑड नंबर पर, रूट लोकस ये स्टार्ट, रूट लोकस कैसे ये स्टार्ट देम रूट लोकस का स्टार्ट ये फ्रेम का शेप वो ना या वापस बराबर थे शेप में लगभग। हालांकि यहाँ कितना ऑर्डर है, 1 2 3 4th ऑर्डर चाहिए सिस्टम कितना, ये कुछ ऑर्डर थर्ड ऑर्डर को थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर जो लगभग सेम गो अथवा ट्रांजिट रेस्पॉन्स लगभग सेम, और पॉइंट ए में उतारना वाली वो मिश मिलान सु कैरेक्टरिस्टिक्स में जरूरत सोच मिलाने छह कितना गो एम मतलब अगर वो वहीं भी ए चेंज ए पकना में थोड़ा युक नहीं, ए पकना में थोड़ा युक नहीं है ना, देशिंग को रखना पे ए चेंज करे, उससे मेरा ये पॉइंट थोड़ा चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी मेरा जो अप्रोक्सीमेशन है कि ये फोर्थ ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर इसका सेम होना चाहिए ट्रांजिट, क्योंकि ट्रांजिट रेस्पॉन्स कैसे ज्यादा चेंज हो सकती है वजन स्टेडी स्टेट एरर वाता हो चाहिए, अगर ट्रांजिट रेस्पॉन्स तूफान हुआ तेल का लेफ्ट स्टेडी स्टेट एरर वजन ओवरशूट बलाया को सुमा लगे मैं सो कंट्रोलर, नो सर तो मैं कंट्रोलर के डिजाइन करूँ कि मैं स्टेडी स्टेट अगर मैं जीरो कर मगर ट्रांजिट रेस्पॉन्स कैसे तूफान को सुन ये, तो इसलिए मैंने इसको हम कहते हैं पोल ऐड किया एक जीरो पे आइडियल वाले में, नॉन आइडियल में हम करेंगे एस प्लस पी वन सपोज, और इसमें लेकिन चूंकि इसको कंपेंसेट करना है इसलिए इसको जीरो पे ऐड करेंगे very near to that pole and it will have this type of response. इसमें एक एग्जांपल से हम इसको थोड़ा सा फाइनली ये लास्ट पॉइंट है इसके बाद हम टेस्ट भी सो compensator with a pole at the origin and zero closed to a pole is called an ideal integrator। तो इसको देखने से पहले मैं आपको लास्ट पॉइंट दिखाऊंगा इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये इसका इम्प्लीमेंट मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको कहा था k by s, ठीक है, इस तरह था हमारा। देखिए अगर मैं इसको हटाता हूँ तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, इजंट इट, Yes, sir. बताइए, है ना, प्लांट यूनिटी फीडबैक Yeah. एरर का जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरर जो यहाँ से निकल रहा है एरर को मैं प्रोपोर्शनली मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, उसको भी फीड कर रहा हूँ प्लांट पे दोनों सिग्नल फीड हो रही है एरर के प्रोपोर्शनली, और एरर को ही मैं समझिए सिग्नल को निकाल रहा हूँ, इसके साथ इंटीग्रेट कर रहा हूँ एरर को, सपोज अनदर k by s, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ एरर एंड द एरर इटसेल्फ आई एम फीडिंग टुगेदर टू द प्लांट, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पी आई कंट्रोलर। ठीक है,
And since this is an ideal integrator, so that's why we call it PI controller. Otherwise, we will see something called as, we will see we have some more different way of looking at this is in the form of the lag compensation. Lag compensator हम देखेंगे, उसमें हम आइडियल इंटीग्रेटर नहीं यूज करेंगे। ये अगर हमें इंप्लीमेंट करना हो फिजिकली तो हमें वो ऑप एम्प्स या इस तरह के एक्टिव सर्किट यूज करने हैं, तो उन्हीं की वजह से हम एक K2 वैसे इस तरह के फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रेटर से PI कंट्रोलर। अब ये क्या है फिजिकली, अगर इसको रियलाइज करेंगे, आपने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में इतना पार्ट हमने पढ़ा है, अगर मैं इसको दोनों को देखूं तो इट्स नथिंग बट एडिशन ऑफ टू सीक्वेंस। इट्स लाइक K1 प्लस K2 by S। ठीक है, Yes. सुना, K1 प्लस K2 by S है दोनों सामने ब्लॉक में दोनों। सो अगर K1 by K2 देखेंगे, K1 ब्रैकेट में S प्लस K2 by K1 लिखूंगा, देखो इसका बाद मैं इवैल्यूएट करूंगा तो इसे इस K1 of S प्लस K1 into K2 by K plus K2 divided by S is equal to K1 plus K2 by S। चाहे कितना सेम, वो यह चीज आकर पे लिखी थी, और ये फॉर्म को जिस वाले फॉर्म है उसमें वो रिलेशन K into S plus A by S, चाहे सेम फॉर्म इसमें Yes, sir. आइडियल K into S plus A by S, K into S plus A by S। अगर वो A क्या है, A है 0, वहाँ पे 0 मतलब वो ZER हो, 0 नहीं क्या, नंबर 0 नहीं क्या, zeros and poles, चलो उससे 0 से कितना कंफ्यूजन, A to ZER 0 था Z1। ठीक है, सो 0 अगर ये पूछो तो 0 S क्या है, K2 by K2 by K1 K1 minus K2 by K1। सो हाँ, तो 0 can thus be adjusted by varying K2 by K1। फिजिकली अगर रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, क्या है, कोई मैं को चेंज करे तम सीधा कोने 0 ट्यून करे, 0 करून पाथ ब्रोट है, तम से फिर वैसे एज गेस परफॉर्मेंस चेंज और एज गेस कंट्रोलर स्टेबल या सॉरी कंट्रोलर का जो बात था ये पॉइंट स्टेट। ठीक है, यानी by changing this 0 or varying this K2 by K1 we are actually varying the 0, and by varying 0 if we keep 0 near to pole we will see that it will be similar to this performance। if we keep it much away then अगर much away करो ना 0 from the pole No, sir. cancellation, और अगर pole 0 cancellation करे तो कैसे आपको उसी बिहेवियर है, ऐसे क्यों नहीं, different behavior which is not desired। we want pole 0 cancellation, that's why 0 has to place near to this, that's why K2 by K1 जो गेन हमारा होगा वो हमें ऐसे वैरी करना है कि वो हमारा इस सिस्टम को उस परफॉर्मेंस तक पहुंचाए। और जब ये हम करते हैं ये सब चीजें सेट, फिर हम सिमुलेशन करते हैं। सिमुलेशन मतलब हम फिर उस कंट्रोलर को पहले देखते हैं, जैसे कंट्रोलर डिजाइनिंग में हम पहले सिमुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या ये सिस्टम वैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी टाइम मुझे लगता है एग्जाम का हो रहा है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, ये आपको बुक में सॉल्व मिलेगा, लेकिन आप इसको देखिए और इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर इसमें आपको कुछ दिक्कत आएगी तो हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। इसको फिलहाल आप फोटो ले सकते हैं या चाहे तो फिर वीडियो से भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको सिस्टम दिया है विद गेन, थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। इन कंपेंसेटर जब लगाएंगे तो इसमें हमने पोल 0 पे लगाया और 0 जो इसका हमने 0.1 पे ऐड किया, उसको करने से हम जीटा इज 1.174, इस पे हम देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी चेंज हो जाएगी। तो चूंकि इंटीग्रेटर है और इंटीग्रेटर में हमने कहा कि इंटीग्रेटर आइडियल ऐड करने से हम सिस्टम का टाइप बढ़ाते हैं और टाइप बढ़ाने से सिस्टम का एरर जो है वो 0 की तरफ हो जाएगा। तो इस कंट्रोलर से हम ये चीज कर रहे हैं, मतलब ना इंश्योर कि हमारा जो कंट्रोलर है फाइनली वो सिस्टम को ड्राइव करेगा 0 एरर के लिए, यानी आखिर में एरर कुछ नहीं रहेगा। यस सर। ठीक है, ऐसा अभी मैं एग्जाम से पहले एक आपको दिखाना चाह रहा था, ये मैटलैब को देख रहे हैं आप इस वक्त? यस सर। तो ये मैटलैब का ही वो है व्हाट वी कॉल सिमुलिंक। तो इसको हम कैसे करते हैं, बेसिकली इट्स नथिंग बट ए ब्लॉक डायग्राम फॉर्म ऑफ दिस मैटलैब, so it makes things sometimes simpler and more intuitive than the program may sometimes be difficult to understand,
हम क्या करते हैं, हम बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट में सिंपल लिंक लिखते हैं, हमारे इस तरह एक ब्राउजर खुलता है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम बेसिकली, ये इसका वर्क स्पेस है। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम यही जैसे अभी हम कंट्रोलर स्टडी कर रहे हैं, इसको बना सकते हैं। जैसे मैंने एक ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक उठाया, यहाँ पर एक कंटिन्यूस ब्लॉक्स होते हैं लेफ्ट साइड में, उसमें ये आएगा ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक। मुझे कॉमनली यूज ब्लॉक जी चाहिए, मुझे इनपुट हमारा सॉरी समेशन ब्लॉक चाहिए, मुझे स्कोप चाहिए जो आउटपुट मुझे देगा ऑसिलोस्कोप जैसा, और मुझे चाहिए इनपुट विच इज नोन एज द सोर्स या सोर्स एंड सिंक्स। सपोज मैं स्टेप इनपुट लूंगा, सपोज इतना ही मैं लूंगा फिलहाल, ठीक है। सर कंट्रोल तो ये सारे जो आपने अभी तक सर पढ़ा है वो सारे कंट्रोलर इससे भी आप कर होना सकते हैं। हाँ चाहिए जी ना इसमें बताइए। या जी हाँ कंट्रोलर भी हो सकता है ना, हम वो उसमें ऐड कर सकते हैं, या चलो आप कंट्रोलर भी लेना चाहेंगे तो चलो वो भी रखेंगे। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंट्रोलर प्लॉट वगैरह सोरी छोड़ी सोरी ऐसा फाइनली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी ना फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, अगर आपको इतनी बना इसलिए मजीद जी इंक्लूडेड, सर ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ मैं ले भी सकता हूँ एक बार, अगर आपको थोड़ा सा उससे क्लियर होगा। यहाँ तक भी कंट्रोलर लेके बजन था ये गेन कांस्टेंट गो अच्छी कोएफिशिएंट 1 डिनोमिनेटर से 1 है, तो इवन गेन जो है करेक्ट एज गेन जस्ट ये ना करिए क्या। सो इसको मैं इस तरह सिग्नल्स को ड्रैग करके इनमें सिग्नल्स को बनाता हूँ, ठीक है। स्कोप तो आउटपुट मुझे कहाँ आएगा, यहाँ पे। हाँ तो इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यस सर आउटपुट पे ले जाऊंगा, इस तरह हो गया। यूनिट ये क्या बन गया हमारा यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ठीक है। फीडबैक जब हमने बोला तो क्लोज आ गया। अब यहाँ डबल प्लस है, तो मुझे, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं नेगेटिव फीडबैक, प्लस वाला भी यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। जो आपकी डाउट्स थे ना मशीदा या तुफैल वगैरह, जी सर। तुफैल साहब, यस सर। हाँ तो आप इसको प्लस डाल के देख सकते हैं। या माइनस जी गेन सर। की जो बात कर रहे थे ना परसों, हम माइनस गेन की भी बात कर सकते हैं, उससे हम सारी इस तरह की चीजें एनालाइज कर सकते हैं। फिलहाल के मैं ये कंट्रोलर हटा दूंगा, इसके लिए मैं डायरेक्ट गेन भी यूज कर सकते हैं हम इस तरह, जिनको हम कॉमनली यूज ब्लॉक में ले सकते हैं इस तरह गेन। अगर सिंपल कंट्रोलर है तो गेन होगा फिलहाल, है ना। वो भी ले सकता था मैं, लेकिन थोड़ा सा ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब ये बन गया कंट्रोलर स्टेप इनपुट। अब स्टेप का क्या मतलब है, स्टेप टाइम 1 it should start after 1 second, so I will keep it 0. It should directly start with some value, final value 1, ठीक है। फिलहाल इतना समझना है। गेन 1 है, सिंपली मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ। ट्रांसफर फंक्शन है 1/s+1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। तो अगर आप अभी कोई सिस्टम लेंगे जो अभी हमने किया यहाँ पे, इसकी कोई एग्जांपल बताइए, कोई एग्जांपल। S² plus 10 S² plus 10 S plus K का मतलब हम यहाँ पर K वैल्यू नहीं रखते, हम K यहाँ पर जनरली कांस्टेंट रखते हैं। K मैं देखना चाहूँगा क्या है। चलो फिलहाल मैं कुछ लेता हूँ 5, ठीक है। आया आप लोगों को समझ। अब मैं इसको करूँगा रन, तो ये इसकी जो है ना पूरा स्टेप इनपुट का क्या रिस्पॉन्स आएगा वो देगा आपको, स्टेबल है अनस्टेबल है कैसे करेगा, ठीक है। स्कोप डायरेक्ट डबल क्लिक करके हमें उसका रिस्पॉन्स हमें टाइम डोमेन में देगा। देखिए यस सर दिख रहा है आप लोगों को। लेकिन हमारा डिजायर्ड आउटपुट क्या था 1, ये कुछ वो 0.16 असता हुआ था कि नया 7 असता है। सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसमें स्टेडी स्टेट एरर बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा भी है ना। अगर मैं गेन तो बढ़ाऊंगा ये अब, चेंज हो आवाज समझ, कम परफॉर्मेंस गया ना चेंज, इट हैज डिक्रीज गो गेन स्टेडी स्टेट एरर कम का समकरम भी ये लगभग वो लगभग पॉइंट, तब भी इसमें स्टेडी स्टेट एरर रहता है, बिकॉज ये वही हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर 1/1 plus kp, so always be फाइनल having some steady state error. That's why we go for हाँ
अब इसी में यही था कि अगर मैं इसमें गेन सॉरी इसमें इंटीग्रेटर ऐड करता है इस तरह के भी जो मैंने जस्ट ऐड किया कि एस पे एस प्लस 5, चलो मैं इसको एक बार लिखता हूँ अगर आपको पता है बाद में लिख सकते हैं, इसको मैं दिखाऊंगा। तो यू कैन एक्चुअली टिंकर विद दिस। देखिए अभी मैं आपको ये वाला दिखाऊंगा, गेन अगर मैं नेगेटिव लूंगा। नाशिद आप ये क्वेश्चन पूछ रहे थे ना या कोई और? तो फिर ठीक है, इसको मैंने रन किया, देखिए सिस्टम के साथ क्या हो गया। सिस्टम हैज एक्चुअली गॉन इनटू अनस्टेबल रीजन, टेम्परेचर ऑफ 5, व्हिच मींस इट इज गोइंग इन अनस्टेबल रीजन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक रखूंगा, मैथमेटिक्स बेसिकली कैश कंट्रोल कैश फाइनल मैथमेटिक्स है कि नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन। you go one stable reverse direction में। जी सर। आवाज समझ? अगर मैं गेन को आप पॉजिटिव फीड रखता हूँ लेकिन पॉजिटिव फीडबैक रखता हूँ, पॉजिटिव फीडबैक विल ड्राइव द सिस्टम टू अनस्टेबल अगेन। जी सर। अनस्टेबल है कि ना? Yes, sir. You can tinker with this, you can make another control, you can like P control, PI control इसमें डाल सकते हैं, जो भी मैंने लिखा था यहाँ पे वो डाल सकते हैं आप, वो इसमें डाल के आप ये कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, स्कोप से पूरा स्टेप इनपुट दे सकते हैं, साइनोसॉइडल इनपुट दे सकते हैं। यहाँ पर आपके देखिए सोर्स बहुत सारे तरीके के हैं, आपके पास साइनोसॉइडल सिग्नल है ना, स्टेप इनपुट है, रैंडम सिग्नल्स हैं, इन तरह की चीज़ों को हम देख सकते हैं, कंटिन्यूस डिस्क्रीट। तो आगे देखेंगे आप अगर आपको इंटरेस्ट होगा कंट्रोलर्स में। So we can do many things in this. We can actually make our own functions वगैरह वगैरह, उनको भी हम इवेलुएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेरा असल में ये दिखाना था आपको कि अगर आपको देखना चाहेंगे ना पोल जीरो कैंसिलेशन भी, वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। आप एक सपोज इसमें कंट्रोलर ऐड करेंगे, उसमें ट्रांसफर फंक्शन जो है जो आप लोग अभी कह रहे थे, अभी मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ, 20 मुझे रखना है न्यूमरेटर में, रखना न्यूमरेटर में। सपोज गेन पे मेरा स्टेबल हो रहा था और s प्लस 1 सपोज में लिखते हैं इसको 20 में, 20 इंटू 20 डिनोमिनेटर में रखते हैं। So this system actually leads again to unstable behavior. Sorry, it was it is पॉजिटिव फीडबैक्स को चेंज करना। पहले हम देखते हैं नॉर्मल सिस्टम को, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव गेन अज्यूम करते हैं। सिस्टम के ऊपर खास कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बताइए इसमें खास कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा सिस्टम में? हाँ जी, इरफान साहब, सिस्टम का ऑर्डर क्या बने हुए? थर्ड ऑर्डर बने ना सिस्टम। मेरे को ना आइडियल इंटीग्रेटर यूज किया, मेरे को नॉन आइडियल इंटीग्रेटर यूज। सिस्टम ऑर्डर को बने 3 सिस्टम कैसे ना चेंज हो परफॉर्मेंस, मगर पोल कहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ? आइडियल वाले में पोल 0 पे ऐड करते हैं, यहाँ पे मैंने कहाँ ऐड किया? -1 पे। -1 पे मैंने पोल ऐड किया, लेकिन 0 भी इसमें ऐड एक और कर रहा हूँ ऊपर में। 0 कहाँ पर ऐड कर रहा हूँ? न्यूमरेटर में। इसको 20 पहले डिवाइड करना है हमें और रीजन पे -1 पे 20s plus 20 is equal to 0. 20s plus 20 is equal to 0. Go s equal to -1. Go s equal to -1 जो ना पोल 0 अच्छे सेम है ना, पोल 0 सेम। यस सर। अब समझ वो -1 पर पोल थी तो -1 पर 0 थी। वहाँ अगर हम ये थिंक कर 0 का देती 2 पे 0.5 डिवाइड है ना। तो सपोज मैं 0.5 नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा दूसरा देखूंगा इसका। अब 0 का आएगा -2 2 पे। बस वैसा परफॉर्मेंस गए चेंज करना, गए चेंज परफॉर्मेंस, ठीक है। और नाउ देयर इज एन ओवरशूट बिकॉज ना पोल 0 कैंसिलेशन ज्यादा मतलब क्लियर नहीं हो रहा। अभी तक एग्जैक्ट था पोल 0 कैंसिलेशन, अब नहीं है पोल 0 कैंसिलेशन, क्योंकि 0 है -1, पोल है -1 पे, 0 है 2 पे, -2 पे। वो पोल 0 कैंसिलेशन इफेक्टिव किया, इसलिए वो रिस्पॉन्स चेंज, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स यू विल डू मे बी एज पर योर इंटरेस्ट। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग इफ यू वांट टू डू। फिलहाल हम एक काम करते हैं, हम आपका टेस्ट लेंगे। आपको मैं 10 मिनट देता हूँ।